Hi everyone, my name is Priyanka, and if you are new to my channel, then I make motivational videos for the people who feel they are stuck in their life but they want to do what their heart really desires. So if you are the one, then my channel is for you. You know, since I have shifted to the new place, today I wanted to talk about what is life according to me and how I was viewing life, and as compared to how I started to view life since I have shifted here. Since a few things from my manifestation started to manifest. So, how I started to view life and what is life according to me. So, since I have shifted here, I have seen a shift in me, and that shift is Priyanka, just enjoy the present moment and try to be in the present moment and try to appreciate and be grateful for what you have right now in this present moment. Because I was a kind of person who always used to think that future में ही खुशी होगी, that for me happiness is always in the future. Right now I'm not worthy to be happy. Happiness is always in the future. So I always used to hold myself back and cut myself off from the group, from the celebration, and from everything. That happiness is not for me. Happiness is always in the future, and right now I cannot be happy. Right now I just cannot enjoy. Right now I cannot just feel what is happening around me, and if there is anything good used to happen to someone and to my friends or anyone, I just used to feel bad because मेरे पास वो नहीं था. मेरे पास मुझे वो दूर दूर तक अपने अंदर वो पोटेंशियल दिखता ही नहीं था कि मैं भी ये कर सकती हूँ, कि मुझे भी ये चीज़ मिल सकती है, जबकि वो चीज़ बहुत इजी होती है. ये जस्ट हमारे माइंड को लगता है कि वो चीज़ बहुत टफ है, बहुत हार्ड है. लेकिन व्हाट आई हैव कम टू द रियलाइजेशन दैट ये बस हमारे दिमाग में होता है, जो हमको ऐसा लगता है कि वो चीज़ बहुत टफ है, और एक बार हम वो चीज़ कर लेते हैं ना तो वो चीज़ बहुत ईजी हो जाती है. हमारा माइंड उसे बहुत बड़ा बनाता है कि दिस इज़ something which is extremely far from you and you cannot reach there, so that you will keep on thinking that you are not worthy of that and you are not worthy of the happiness and you are not worthy to be there, जो मुझे ऐसा लगता है. So how I started to view life, that life is in every moment. Like अभी मैं वीडियो बना रही हूँ तो मुझे कैसा फील हो रहा है राइट नाउ, मुझे कैसा फील हो रहा है right now, what do I feel about myself and about my content and about coming online and talking to you all guys. Right now मुझे कैसा feel हो रहा है right now, what how how can I be in this moment, and how can I you know extract most out of this moment. How I can just enjoy this moment, कि मैं इस मोमेंट को और अच्छा कैसे बना सकती हूँ, इस मोमेंट पे मैं अपने लिए और अच्छा क्या कर सकती हूँ, इस मोमेंट में मैं अपने आप को और अच्छा बेटर कैसे कर सकती हूँ. यू नो विजन बोर्ड बना लिया, सब कर लिया, सब ठीक है, बट मैं बस अब दिमाग में सोच ही रही हूँ ना कि अब बस फ्यूचर में मुझे खुशी मिलेगी, फ्यूचर में जब जब मेरे पास वो सब कुछ होगा तो ही मैं खुश होंगी. अभी जो मेरे पास है मैं तो उसको अप्रिशिएट कर ही नहीं रही. अभी अगर मेरे मैनिफेस्टेशन का 1% भी सच हुआ है तो फिर से मैं उसी ट्रैप में हूँ कि जब तक वो 99 और 95% मैनिफेस्टेशन मेरा पूरा नहीं हो जाता मैं खुश नहीं हो सकती. ऐसे तो मैं लाइफ टाइम ट्रैप में ही रहूँगी. ऐसे तो अगर मुझे वो चीज़ मिल भी गई जो मुझे चाहिए, एंड अगर मैंने वो मैनिफेस्ट कर भी लिया, तब भी मैं कभी खुश रह ही नहीं पाऊँगी. बिकॉज मेरे लिए वो खुशी हमेशा फ्यूचर में होगी. मेरे लिए वो खुशी हमेशा एक स्टेप दूर होगी. मैं कभी अपने आप को अलाउ कर ही नहीं पाऊँगी कि मैं खुश रह सकती हूँ, कि मुझे भी खुश होने का हक है, कि मुझे ज़्यादा ओवर थिंक करने की ज़रूरत नहीं है. एंड आई टॉक अबाउट माई सेल्फ बिकॉज आई फाउंड दिस इन मी दैट just keep on doing, keep on doing, keep on doing, keep on doing. And I was the kind of person, and I still am always stuck in my mind, always stuck in my head,
always thinking about what other peoples are thinking of me, always thinking about how others are viewing me, always thinking about how I can please other people and how I can be accepted by them most of the time. And that's what was keeping me sad all the time. I was totally stuck in my head कि जिन लोगों ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया, जिन लोगों ने मुझे उतना नहीं दिया जितना मैंने उन्हें दिया, most of the time I'm trying to just, even if I'm posting anything on social media, even if I'm wearing anything, if I'm talking in a certain way, I'm just trying to please them. I'm just trying कि कैसे ना कैसे करके वो मेरी लाइफ में वापस आ जाएं, कैसे ना कैसे करके वो मेरे वर्थ को पहचान जाएं, कैसे ना कैसे करके उन्हें ये समझ में आ जाए कि उन्होंने जो लूज़ किया है वो कोई बहुत ही बड़ी चीज़ लूज़ की है। कैसे ना कैसे करके वो बस अपनी गलती को रियलाइज़ करके मेरे पास वापस आ जाए। लेकिन अभी जो मुझे रियलाइज़ हुआ है, आई वॉज जस्ट स्क्रोलिंग इंस्टाग्राम एंड मुझे एक बहुत ही अच्छा रील दिखा जिसमें वो अटैचमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो जो एक हेल्दी अटैचमेंट है और एक एंशियस और एक अवॉइडेंट है। तो जो अवॉइडेंट है वो हेल्दी को बोलता है कि I think you are too much for me and I don't want to be and I'm not sure about this. वो बोलता है कि I'm not sure about this relationship and about you but I feel good when I'm with you. And तब वो जो सेफ वाला होता है वो ये बोलता है it's okay to feel that way. I understand from where it is coming and it's okay if things between us does not work out because I want to be with someone who is sure of me and who knows कि what value I bring to the table, and if you do not have that then it's okay, thank you for telling me. तो जो अवॉइडेंट होता है वो बोलता है कि वाओ आई लाइक योर व्यू अबाउट योर सेल्फ एंड अबाउट लाइफ, कैन आई जस्ट कम बैक इन टू योर लाइफ. तो जो सेफ वाला होता है वो बोलता है कि नो नॉट नाउ बिकॉज इट टुक यू टू लीव मी और अवॉइड मी और मेरी लाइफ आपको मेरी वैल्यू को जानने के लिए मुझे छोड़ना पड़ा, तब जाके आपको मेरी वैल्यू समझ में आई. जब मैं आपकी लाइफ में था तब आपको मेरी वैल्यू समझ में नहीं आई. सो आई डोंट थिंक दैट आई वॉन्ट टू बी इन दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप. And this kind of opened my eyes. The moment I saw this reel, this kind of opened my eyes कि मैं भी तो यही कर रही हूँ, मैं भी तो मोस्ट ऑफ द टाइम यही करती रहती हूँ कि एट लास्ट दिस पर्सन विल एक्सेप्ट मी. अब जाके इसको मेरी वैल्यू पता चल जाएगी, अब जाके ये पर्सन मुझे जान जाएगा, अब जाके इसको पता चल जाएगा कि मैं कितनी इम्पोर्टेंट हूँ और क्या कुछ इसके लिए कर रही थी एंड मैं कितना खुद को सेक्रीफाइस कर रही थी. फाइनली जो ये सामने वाला है उसको मेरी वैल्यू पता चल जाएगी. तो ये चीज़ मेरे दिमाग में घूमती रही और फिर मैं ये सोचती गई कि लाइफ इज़ नॉट अबाउट प्रूविंग माई वैल्यू और माई वर्थ टू एनी वन, रादर अट्रैक्टिंग दोज टाइप ऑफ पीपल हु जस्ट accept me, admire me and see my value. कि what she is bringing to the table is valuable. That's what I realized about myself and about life since I have shifted here. About life that just be in this moment. हमेशा हर चीज़ को डर से सोचने की ज़रूरत नहीं है, because most of the time I used to think everything from the place of fear. कि हर चीज़ को मैं डर से कोरिलेट कर रही हूँ, हर चीज़ को मैं डर से अगर मैं मान लीजिए कि अगर मैंने अभी यहाँ का रेंट पे किया, नाउ इफ़ आई डू नॉट हैव अ मनी टू पे द रेंट नेक्स्ट मंथ, तो आई यूज़ टू थिंक कि आई एम नॉट वर्दी टू लिव हियर एंड हाउ एम आई गोना मेक दैट मनी, रादर देन थिंकिंग जो मैं अभी सोच रही हूँ, आई एम वर्दी टू लिव हियर, I am worthy to live here, that's why I am here. How can I make money that I can pay rent next month smoothly? अब मेरा दिमाग ये सोच रहा है, अब ये नहीं सोच रहा है कि आई एम नॉट वर्दी, ओ पुअर मी, मेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ, कोई मेरी हेल्प भी नहीं कर रहा है, ओ आई लिव हियर अलोन,
अब क्या होगा मेरा, मेरे पास तो इतने टैलेंट्स भी नहीं है, स्किल्स भी नहीं है, मैं तो कुछ कर भी नहीं सकती. रादर देन थिंकिंग ऑल दीज नेगेटिव थॉट्स, I started to ask myself कि I am here because I am worthy to live here. I am worthy. So how can I make money कि मैं next month उतना रेंट पे कर पाऊँ? Because जो मनी है वो मेरी लाइफ में जो चीज़ मुझे चाहिए था वो ला रहा है. तो rather than thinking कि money is bad, because of money I am stuck, because of money I am not able to live a life I want. Let's make myself more worthy. Let's feel this moment. Let's feel what I have right now. Let's just feel my window, my bed, my balcony. जितना भी मैं इसको फील कर सकती हूँ, let's just feel it. Let's just tell myself that Priyanka, you are worthy to live here. You are worthy to be here. You are worthy of all this comfort, of all this luxury. Money is not bad. मनी की वजह से तुम्हारी लाइफ में सैडनेस और डिप्रेशन और कोई भी नेगेटिविटी नहीं है. अगर कुछ भी है तो वो तुम्हारी लिमिटिंग बिलीफ की वजह से है जो तुमने अपने लिए होल्ड कर रखी है. एंड इस वीडियो में मैं ज्योति मैम को क्रेडिट देना चाहूँगी बिकॉज most of the things which I am talking about and which I talked about in my video, I learned from her by watching her videos, by watching her talking about life and spirituality and manifestation, because she have her own business called Ajanta Vihara Spiritual Sciences, and I am associated with her. So I get to learn a lot from her, and in this video I would like to give credit to her. So I just realized कि I was stuck in the negative looping of my worth, about my worth, कि what is my worth and what am I capable about and what I deserve in life. And I always used to think that I'm not capable, I'm not smart enough, I'm not good enough, I cannot do this, I cannot even go anywhere, go for a solo travel. I always used to think, and since I have shifted here, कुछ तो change हुआ है मेरे अंदर. There is a shift. I don't know कहाँ से आया, कैसे आया, but as I talked in my last video कि I was sitting in a balcony and I was just looking at the sky, and I just started to feel it, and I just started to feel कि oh my God, what I wanted I have it, even if I do not have 100%, but कुछ तो है, and today I have it. Am I happy? क्या मैं खुश हूँ? क्या ये मेरी लाइफ में जॉय को लाता है? क्या मुझे और चाहिए? क्या मेरा माइंड मुझे ट्रिक कर रहा है कि राइट नाउ आई जस्ट कैन नॉट बी हैप्पी? देन आई स्टार्टेड टू थिंक अबाउट एवरीथिंग फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव कि क्या मैं अपने लिए भी ऐसा ही सोचती हूँ? क्या मैं जो 20 साल पहले सोचती थी अभी तक वही लिमिटिंग बिलीव्स को लेकर बैठी हुई हूँ कि आई एम नॉट गुड इनफ, नॉट वर्दी इनफ, नॉट केपेबल इनफ, आई डू नॉट हैव एनी टैलेंट, आई डू नॉट हैव एनी स्किल टू ग्रो. बिकॉज अगर मैं हर एक इंसान में उस पोटेंशियल को देख रही हूँ, उस एक अच्छाई को देख रही हूँ, तो वो मेरे अंदर भी तो होगी ना. मैं अपने अंदर उस पोटेंशियल को क्यों नहीं देख रही हूँ? मैं अपने अंदर उस अच्छाई को क्यों नहीं देख रही हूँ? मैं खुद को ग्रो करने के बारे में क्यों नहीं सोच रही हूँ? Why am I not celebrating this moment? Why am I not celebrating myself? Why am I not talking to myself kindly? मैं क्यों अपने आप को इतनी नेगेटिव चीज़ें रोज़ बोलती रहती हूँ, या फिर लोगों से अगर मैं किसी से बैठ के बात भी कर रही हूँ, मेरे फ्रेंड से या फिर किसी से, मैं अपने बारे में नेगेटिव चीज़ें क्यों बोल रही हूँ? और वो नेगेटिविटी क्या मेरी लाइफ में प्रोग्रेस को लाएगा? एंड मैं अपने लिए जितना पिटी फील करती रहूँगी, जितना खुद को बुरा बोलती रहूँगी, जितना बेचारी फील करती रहूँगी, जितना मैं अपने ऊपर बिलीव नहीं करूँगी, क्या मैं लाइफ में ऐसे ग्रो करूँगी? एंड इवन इफ
लेट्स से कि मेरे पास वो अपॉर्चुनिटी आई जो मुझे चाहिए, क्या राइट नाउ डू आई फील दैट आई एम रेडी इनफ, आई एम वर्दी इनफ? क्या राइट नाउ डू आई फील कि आई कैन गो देयर एंड टॉक टू दैट पर्सन? राइट नाउ डू आई फील क्या कि मैं बुक लिख सकती हूँ? जब तक मैं खुद से नेगेटिव बातें करती रहूँगी, जब तक मैं अपने ऊपर वर्क नहीं करूँगी, जब तक मैं अपने इनर डायलॉग को चेंज नहीं करूँगी, तब तक मेरी लाइफ में वो सारी चीज़ें कैसे आएंगी? अगर मैं फ्यूचर में खुद को देखती हूँ कि आई एम वेरी कॉन्फिडेंट एंड आई एम डूइंग व्हाट आई लव, व्हाट माई हार्ट रियली डिज़ायर्स, ऑल्सो आई एम मेकिंग मनी आउट ऑफ इट, देन कुछ तो मैंने अपने अपने अंदर चेंज किया होगा ना। मैंने कुछ तो अपनी लाइफ में चेंजेस किए होंगे जिसकी वजह से आज मैं वहाँ तक पहुँची हूँ। अगर मैं आज से अपनी लाइफ में वो चेंजेस करना स्टार्ट नहीं करूँगी और बस मैं अपने माइंड में सोचती रहूँगी कि बस मेरे पास वो बड़ा सा घर आ जाए, वो कैसे आएगा? बिकॉज वो है, वो कहीं ना कहीं तो है, अभी बस मैं वहाँ पे नहीं हूँ और अभी वो मेरे पास नहीं है। तो मैंने वहाँ तक पहुँचने के लिए क्या चेंज किया होगा अपने अंदर? मैंने लाइफ को कैसे देखना स्टार्ट किया होगा? मैंने अपने आप को कैसे देखना स्टार्ट किया होगा? मैंने अपने अंदर क्या चेंजेस लाए होंगे? सो एक बहुत ही एक्सट्रीम रियलाइजेशन मेरे अंदर ये भी हुई, बिकॉज आई वॉज अ बिग पीपल प्लीजर। मैं बहुत पीपल प्लीज करती थी। मेरे माइंड में हमेशा ये रहता था कि सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचता है, सामने वाले के लिए मैं बहुत ही सही अच्छी दिखनी चाहिए। लेकिन मुझे कभी भी वो चीज़ अच्छी लगती नहीं थी। डीप डाउन आई ऑलवेज यूज टू फील कि मुझे उतना वापस में मिल नहीं रहा है जितना मैं दे रही हूँ। देन आई स्टार्टेड टू आस्क माई सेल्फ कि मैं उतना दे भी क्यों रही हूँ जितना मुझे देना नहीं है, और जो मुझे वापस में कुछ दे नहीं सकता। मैं क्यों अपनी वैल्यू को इतना कम कर रही हूँ? मैं क्यों अपने वर्थ को इतना कम कर रही हूँ? मैं क्यों अपने आप को वो पेन बार बार दे रही हूँ? मैं क्यों ऐसे लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर रही हूँ जो मुझे वो चीज़ दे सकते हैं जिस चीज़ की मैं हकदार हूँ, जो चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर में मैं डिज़र्व करती हूँ? राइट नाउ मैं क्यों ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में अलाउ कर रही हूँ? ऐसी कौन सी चीज़ है जो मुझे बार बार हर चीज़ के लिए यस बोलने के लिए बोलती है? कि मुझे नो बोलने से बहुत डर लगता है कि अगर मैंने नो बोला, मैंने किसी को ऑफेंड कर दिया, तो आई एम नॉट सेफ। क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मुझे हर चीज़ के लिए लोगों को प्लीज़ करना पड़ेगा? मुझे क्यों अपने ऊपर, अपने एबिलिटीज़ पर, अपने सेल्फ वर्थ पर, अपनी सेल्फ इस्टीम पर इतना बिलीव नहीं है? क्यों मेरा सेल्फ वर्थ और सेल्फ इस्टीम इतना लो है? क्यों मैं हर चीज़ को यस बोल रही हूँ सिर्फ क्योंकि वो बंदा, क्योंकि वो, सॉरी फॉर द लैंग्वेज, ताकि वो इंसान प्लीज़ हो जाए और मेरी लाइफ में रहे और मुझे यूज़फुल समझे, मुझे अच्छा समझे। क्यों मैं कर रही हूँ ऐसा? जबकि डीप डाउन मैं ऐसा नहीं करना चाहती, ना ही मैं वो काम करना चाहती हूँ जो मैं उसको प्लीज़ करने के लिए कर रही हूँ, ना ही मैं वो इंसान हूँ जो मैं उसको प्लीज़ करने के लिए बन रही हूँ। मैं क्यों कर रही हूँ ये सब, और किसको प्लीज़ करने के लिए कर रही हूँ? एंड राइट नाउ ऑल्सो जब मैं ये सारी बातें आप सबको बता रही हूँ, मेरे माइंड में यही चीज़ चल रही है कि क्यों, वाई देर इज़ अ डीप डिज़ायर इन मी एंड वाई देर इज़ अ डीप नीड टू प्लीज एवरी वन, एंड देन ओनली फील सेफ। कि जब तक मैं पूरी दुनिया को प्लीज़ नहीं कर देती, मैं सबका काम नहीं कर देती, सबको येस नहीं बोल देती, तब तक मुझे सेफ फील नहीं होता। जैसे ही मैं नो बोलना स्टार्ट करती हूँ, मैं किसी चीज़ को नो बोलती हूँ, मुझे बहुत डर लगता है कि ओके मैंने नो बोल दिया, अब क्या? इज़ दिस पर्सन गोना लीव मी? आर दे एंग्री विथ मी? वाई आई जस्ट के नॉट रिलैक्स? आई जस्ट के नॉट से नो एंड फील कि ओके मैंने नो बोला क्योंकि मुझे वो चीज़ नहीं करनी। और अगर उस इंसान को वो चीज़, वो नो पसंद नहीं आया, अगर वो ट्रिगर हो गया, तो वो इंसान मेरे लिए नहीं है। मैं इस चीज़ को क्यों नहीं बिलीव कर सकती? क्यों नहीं मैं इस चीज़ को अब खुद को बता सकती हूँ कि
ओके, अगर नो बोलने से वो इंसान चला गया तो कोई ऐसा आएगा जो आपके नो बोलने से आपको समझेगा, और वो उसको पर्सनली, और उस चीज़ से वो आपको छोड़ के तो नहीं जाएगा. सो जस्ट लेट्स कम बैक टू द लाइफ कि आई एम व्यूइंग लाइफ लाइक दिस राइट नाउ, कि मैं लोगों को प्लीज़ कम करते हुए कैसे वो चीज़ें कर सकती हूँ जो मुझे पसंद है, जो मुझे खुशी देती हैं, और कैसे मैं अपने आप से नेगेटिव सेल्फ टॉक को रोक सकती हूँ. जो मैं पूरे टाइम खुद से नेगेटिव सेल्फ टॉक करती रहती हूँ, खुद को नेगेटिव चीज़ें बोलती रहती हूँ, वो मेरी लाइफ में मुझे कितनी आगे लेके जा रही है. मैं आज तक अपनी लाइफ में कहाँ आई, अपने आप को वो सारी चीज़ें नेगेटिव बोल बोल के आज मैं अपनी लाइफ में कहाँ हूँ. क्या मैं वहाँ हूँ जहाँ पे मैं चाहती थी कि मैं हूँ? क्यों मैं रिस्क नहीं ले पा रही हूँ? क्या डर है मेरे अंदर? क्यों मुझे वो कौन सी चीज़ रोक रही है? मैंने नेगेटिव चीज़ें तो अपने आप को बहुत बोल दी, बहुत बेचारा फील कर लिया, ठीक है, लेकिन क्या मैंने वो टफ चीज़ें करी जिससे मैं उस नेगेटिव चीज़ से बाहर आ पाऊँ? क्या मैंने अपने आप को चैलेंज किया कि मैं उस पैटर्न को ब्रेक कर पाऊँ? तो सिर्फ नेगेटिव चीज़ें खुद को बोल बोल के मैं खुद को क्या प्रूफ करना चाहती हूँ, और मैं क्या लोगों से वैलिडेशन मांगना चाहती हूँ कि मैं बेचारी हूँ. सो आई वाज जस्ट थिंकिंग, एंड राइट नाउ ऑल्सो आई एम जस्ट थिंकिंग कि हम जो खुद से नेगेटिव चीज़ें बोलते रहते हैं और हंसते रहते हैं उसके ऊपर और बेचारा फील करते रहते हैं, क्या उस चीज़ से हम लाइफ में कहीं जा रहे हैं? हमें लाइफ में कुछ मिल रहा है, या कुछ हैप्पीनेस हमें मिल रहा है? क्या मिल रहा है उससे हमें? उससे तो हमें कुछ नहीं मिल रहा. हमें बस थोड़ी सी सिंपैथी मिल रही है लोगों से. मे बी हमें वो चीज़ अच्छी लगती है, इसीलिए हम नेगेटिव चीज़ें बोलते रहते हैं खुद से, एंड लोगों के सामने खुद को बेचारा दिखाते रहते हैं, एंड सिंपैथी गेन करते रहते हैं, क्योंकि हमें डीप डाउन लगता है कि दिस इज़ वॉट आई डिज़र्व. बट अगर मुझे अपनी लाइफ में वो चीज़ें चाहिए जो मैं सच में चाहती हूँ, तो मैं अपने आप को वर्दी कैसे बना सकती हूँ? मैं अपने आप को क्या बोलूँ जिसको बोलने से मुझे ऐसा लगे कि हाँ, धीरे धीरे मुझे वर्दी फील हो रहा है. मैं वो कौन से स्टेप ले सकती हूँ, भले ही छोटे, लाइक मैंने 5 चीज़ें लिखी एंड आई रोट इट विद माई फ्रेंड. तो मैंने उसमें कुछ चीज़ें लिखी कि मैं हर चीज़ को नो बोलूँगी जो मुझे नहीं करना, एंड आई विल टेल माई सेल्फ एवरी डे दैट आई एम स्मार्ट, आई एम इंटेलिजेंट, एंड आई एम वर्दी जस्ट एज आई एम, एंड आई विल रीड बुक 10 मिनट 15 मिनट सोने से पहले. तो मैंने 10 मिनट टाइम दिया, क्योंकि 15 मिनट मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा था, मुझे स्टार्ट करना था कुछ अपने लिए. एंड मैंने 1-2 चीज़ें और उसमें लिखी. लेट मी जस्ट शो यू गाइज. हाँ, what did I write? That I will practice listening more and speaking less this month. I will practice feeling the present moment this month. I will practice not taking things personally this month. And every day I will tell myself that I am smart even when I do not feel that I am smart. See, I will say no even when it feels scary this month. I will read book every day 15 minutes before bed. तो मैंने हाफ एन आवर या फिर 1 घंटा नहीं लिखा, बिकॉज आई नो कि अभी स्टार्टिंग में मेरे लिए वो बहुत टफ हो जाता. तो मैंने वो चीज़ अभी नहीं लिखी क्योंकि वो मेरे से अभी हो नहीं पाती है, एंड फिर इवेंचुअली मैं वो चीज़ छोड़ देती करना. सो 2 दिन से आई एम प्रैक्टिसिंग मोस्ट ऑफ दीज थिंग्स कि आई एम ट्राइंग टू फील द प्रेजेंट मोमेंट. एंड बस ये 5 स्टेप करके जो बहुत ही छोटे से हैं, जो मैं ऑलरेडी ट्राई कर रही थी, लेकिन जस्ट बिकॉज मैंने ये नोट डाउन किया और मैंने ये करना स्टार्ट किया, आई जस्ट स्टार्टेड टू फील प्रोडक्टिव.
आई स्टार्टेड टू फील कि मैं अपने लिए कुछ कर रही हूँ. आई स्टार्टेड टू फील कि मैं अपने आप को प्रायोरिटाइज कर रही हूँ. आई स्टार्टेड टू फील गुड अबाउट माई सेल्फ कि मैं अपने फ्यूचर के लिए भले ही छोटा सा एक्शन क्यों ना हो, मैंने छोटा सा तो एक्शन लिया. सो दैट्स हाउ आई एम व्यूइंग लाइफ राइट नाउ. दैट कि राइट नाउ व्हाट कैन आई डू राइट नाउ. मैं वो क्या चीज़ कर सकती हूँ जो मुझे मेरे ड्रीम्स के एक स्टेप और क्लोज ले जाएगी. देर इज़ अ ब्यूटिफुल बर्ड chirping. I love it. So cute. Oh, so cute. So innocent. I wish I could just go and talk to this bird. Oh, चला गया. ओके सो अगर मैं अभी राइट नाउ मैं वो क्या चीज़ कर सकती हूँ जो मुझे मेरे ड्रीम्स के एक स्टेप और क्लोज ले जाए. राइट नाउ मैं अपने आप को कैसे चैलेंज कर सकती हूँ, मैं अपने कौन से पैटर्न्स को ब्रेक कर सकती हूँ जो मुझे अच्छा फील नहीं कराते, जो मुझे खुद के लिए मेरे लिए अच्छा फील नहीं कराते. राइट नाउ इन दिस मोमेंट मैं वो कौन से स्टेप ले सकती हूँ, मैं वो कौन सी चीज़ें कर सकती हूँ, मैं वो कौन से एक्शन ले सकती हूँ. जैसे कि मुझे वीडियोस बनाना भी पसंद है. सो आई वोक अप इन द मॉर्निंग एंड मैंने छोटे छोटे क्लिप्स बनाए जिसको एडिट करके मैं अपने इंस्टा पे डालूँगी. तो वो चीज़ मुझे खुशी दे रही है तो मैंने वो किया. फ़ोटो शूट करना मुझे खुशी देती है तो मैंने वो किया. वीडियो बनाना मुझे अच्छा लगता है एंड पोस्ट करना अच्छा लगता है, आप सबसे बात करना अच्छा लगता है, अपने बारे में शेयर करना मुझे अच्छा लगता है. तो मैंने वो किया, मैं वो कर रही हूँ. भले ही मुझे नहीं पता कि ये चीज़ मुझे कहाँ पे लेके जाएगी, लेकिन ये चीज़ें कम से कम मैं कुछ तो कर रही हूँ. एंड ये मेरे अंदर कॉन्फिडेंस को लाता है. ये मुझे कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट फील कराता है कि प्रियंका यू आर डूइंग समथिंग, यू आर नॉट वेस्टिंग योर टाइम, you are taking action, you are taking the step and your life is beautiful. Right now तुम इतना अगर कर सकती हो वही बहुत है. ज़्यादा खुद पे प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं है. बिकॉज आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन जो मैं अपने आप को बहुत प्रेशराइज करती हूँ, बहुत क्रिटिसाइज़ करती हूँ, लेकिन मुझे इस चीज़ से बाहर आना है कि I do not have to take the burden of the whole world. I do not have to prove myself to anyone. I do not have to become something in certain deadline and I do not have to please anyone. जब मुझे बनना होगा तब मैं बन जाऊँगी. Right now just do it rather than feeling bad about your situation, feeling bad about yourself, resenting those people from your past. Do something right now. डू समथिंग प्रोडक्टिव राइट नाउ. डू समथिंग जो थोड़ी सी और खुशी को बढ़ाता है, जो थोड़ी सी और एक्साइटमेंट को बढ़ाता है, जो थोड़ी सी और आपके अंदर जॉय को बढ़ाता है. मुझे आज ही स्टेज पे खड़े होके वो मोटिवेशनल स्पीच देने की ज़रूरत नहीं है. अभी इतना ही बहुत है मेरे लिए और मे बी ये मेरा फर्स्ट स्टेप है. एंड आई डोंट नो कि मैं फ्यूचर में कहाँ होंगी और मैं कहाँ जाऊँगी, मुझे मेरी मैनिफेस्टेशन कैसे मिलेगी, बट I just want to feel proud of myself कि I'm doing something productive which is bringing joy to me, happiness to me rather than doing those things to please other people जो ना मुझ में joy को लाता है, ना वो joy को लाता है, ना वो खुशी को लाता है, ना वो fulfillment को लाता है, ना happiness को लाता है. एंड देन आई एंड अप फीलिंग बैड अबाउट इट क्योंकि मैंने उस चीज़ के लिए उन्हें येस बोल दिया एंड मुझे वो चीज़ करनी भी नहीं थी. Your life is all about doing those things which brings joy in your life, which brings happiness in your life. जिस चीज़ से आप और अलाइव फील करते हो, जो चीज़ करके आपको बहुत अच्छा लगता है, वो ही चीज़ आपको अपनी लाइफ में करनी चाहिए. किसी और के लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है. आई नो अभी भी मैं वहाँ तक नहीं पहुँची. काफ़ी चीज़ को मैं अभी भी यस बोल देती हूँ, मुझे डर लगता है, लेकिन आई वॉन्ट टू डू. I want to practice it more, I want to do it more and I want to
फील मोर स्मार्टर बिकॉज आई एम। मे बी मैंने बस वो चीज़ अभी तक, आई वॉज टॉकिंग टू माई फ्रेंड एंड हम दोनों यही बात कर रहे थे, एंड शी टोल्ड मी कि यू हैव जस्ट नॉट प्रैक्टिस्ड इट येट। तुमने बस अभी उसको प्रैक्टिस नहीं किया है। देन यस, मैंने बस अभी उसको प्रैक्टिस नहीं किया है, इसलिए मुझको लगता है कि मुझे वो नहीं आता। द मोमेंट आई विल प्रैक्टिस इट, आई विल डू इट, आई विल नो इट। बच्चे को जब वो जन्म लेता है तभी से चलना तो नहीं आता ना कि और अगर कोई उसको आके अगर वो सोचने सोचने लगे लोगों को देख और बच्चों को देख के कि मैं तो भाग भी नहीं पा रहा, देखो वो चल रहा है, मैं तो चल भी नहीं पा रहा, उसने तो प्रैक्टिस ही नहीं किया अभी, वो तो छोटा सा बेबी है वो। तो जब वो चलेगा, फिर पहले वो क्रॉल करेगा, फिर वो धीरे धीरे चलना सीखेगा, तभी तो वो भागेगा। एकदम से तो भागना स्टार्ट नहीं कर देगा ना। तो मे बी this is my first step to show up here confidently, just the way I am. Then let's see where life takes me. Maybe इस कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है मेरे लिए, मुझे, ताकि फ्यूचर में मैं जहाँ पे जाना चाहती हूँ वहाँ पे मैं स्मूथली जा पाऊँ। मे बी वहाँ पे मुझे इस कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होगी जो मैं अभी बिल्ड करूँगी। मे बी जब तक मैं वो सेल्फ वर्थ, सेल्फ इस्टीम अपने अंदर बिल्ड नहीं कर लेती, मे बी मैं उस चीज़ को अट्रैक्ट कर ही नहीं पाऊँगी। मे बी मैं वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाऊँगी। मे बी मैं उस रूम में एंटर नहीं कर पाऊँगी। मे बी मैं उस इंसान से बात नहीं कर पाऊँगी। मे बी मैं उस अपॉर्चुनिटी के लिए खुद को वर्दी नहीं मान पाऊँगी। मे बी आई नीड टू डू इट राइट नाउ। जो मैं अभी कर रही हूँ, मुझे इसी चीज़ को अच्छे से करने की ज़रूरत है और बस एक एक स्टेप लेने की ज़रूरत है, भागने की ज़रूरत नहीं है। एंड जस्ट स्टॉप क्रिटिसाइजिंग योर सेल्फ, प्रियंका। You are doing enough, you are smart, you are talented, you are amazing and you are trying, and trying is enough. किसी को कुछ प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। On this note, I will complete my video here, and if you guys like my content, resonate with my content, then do like, comment and share with your friends and family. Till then, bye bye, take care, and I will see you all in my next video.